His Holiness Sadhu Shri Guruji. I welcome Shri Sadhu Shri Guruji from Aisahayog Foundation. Aisahayog Foundation ಮುಖ್ಯ ರುಮಾನಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಸಾಧು ಶ್ರೀ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗುರುಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಈಗ I would like to invite His Holiness ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಧು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಐಸಹಯೋಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೌಂಡರ್, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಅನೇಕ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Sadhguruji to come and address us. Hello, mic check. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So my Kannada is this much only. I am Kannada illiterate. That's okay. I hope all of you can understand. Because relation between you and me is not dependent on the language. It is a heart to heart and a mind to mind relation. Love has no language. Am I right? How many of you believe that love has no language? Everyone. I love you. Right? So we have no language barrier. We can understand each other without language also. But since we are human beings, we will try to communicate in a human language, maybe in English or a little bit of Hindi. That is all I know. Right? Are you okay with that?
Is everybody okay? Thank you so much. First of all, I would like to thank Rangaswamy sir for organizing such a wonderful program on such a big level, and his wife Lakshmi ji, who is working behind this from a very long time. Thank you so much, sir. And I would also like to thank our Swamiji, Abhinav ji, Dr. Abhinav, for coming here all the way from Belgaum and addressing us here and giving us so much good knowledge about dhyana, meditation, the importance of dhyana in our life, which we have forgotten nowadays. And I would also like to thank Srinath ji for coming here, and he will be performing his music as well, and organizing, anchoring this program, and being a part of all this. And I would also like to thank all of you for coming here and becoming a part of this program, becoming a part of this celebration. Without you, this program is nothing. Am I right? Right? Without you, there is nothing. I would also like to thank our people, all the cameraman and everybody, whoever is a part of this program. My all blessings and my thanks to everybody here. Now, today, the topic that I am going to discuss with all of you is, you know the topic? How many of you know the topic? Did you get the invitation card? You got the invitation card? How many of you know the topic? The topic is poem. Poem. How many of you know poem? Do you know any poem? Do you know any poem? Bachpan mein, childhood, you remember any poem? You know any poem? Twinkle, twinkle, little star. Huh? Baba Black Sheep. Right? Poem. All of you know? First, second standard, we all learned poem. So that was a poem for a little child. Now today, the poem that we are going to discuss is the power of energy mind. What is it? The power of energy mind. So the poem refers here is the power of energy mind. How many minds do we have? Do you know how many minds do we have? How many minds do we have? Any idea? Sir, any idea how many minds do we have? Conscious mind, subconscious mind, 3 minds. Somebody says 3 minds, somebody says 2 minds. But not only 3 minds, we have multiple minds. Out of these multiple minds, there is one small mind, which is actually mind is a layer of the energies. What is mind? Mind is an energy. It's a layer of energies. Like every emotion that you have is a part of your mind. कौन-कौन से emotions होते हैं? You know any emotions? How many emotions do we have? Krodh, anger, happiness, khushi, sorrow, sadness. So many emotions we have, right? Every emotion is an energy, and every emotion is a part of our mind. Are you getting it? Do you understand? Any problem? ठीक है? Okay. Now what is mind? Mind is the most powerful energy in the entire universe. Mind is the most powerful energy in the entire universe. How come? Brahma. You know Brahma? All of you know Brahma? Brahma created this universe with a thought, one single thought. ब्रह्मा ने अपने एक कल्प से पूरी सृष्टि की रचना कर दी. ब्रह्मा ने अपने एक विचार से, एक कल्प से पूरी सृष्टि की रचना कर दी. महाब्रह्मांड बना दिए, ब्रह्मांड बना दिए, धरती बना दी, धरती पे प्रकृति बना दी, प्रकृति में
जीव जंतु बना दिए, जीव जंतु में मनुष्य बना दिए, मनुष्य में प्राण दे दिए, प्राण में ऊर्जा दे दी, ऊर्जा में विचार दे दिए, और आज हम इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों विचारों के साथ आज यहां पर बैठे हुए हैं. Am I right? Am I right? We have hundreds of millions of thoughts in our mind, isn't it? Right? Okay. Now, I want you to think for a moment. I want all of you to just close your mind, close your eyes. Just close your eyes. Close your eyes. And think, what is there in your mind right now? What is there in your mind right now? तुम्हारे मन में इस समय कौन सा विचार है? तुम क्या सोच रहे हो? Slowly open your eyes. Now, tell me, आपके मन में क्या विचार है? कुछ विचार है मन में? क्या विचार है? चिंता है? घर की परेशानियां हैं? बच्चों की चिंता है? फैमिली के इश्यूज हैं? फाइनेंशियल इश्यूज हैं? पैसों की चिंता है? हेल्थ इश्यूज है? हेल्थ की चिंता है? फ्यूचर इश्यूज है? भविष्य की चिंता है ना? बच्चों के भविष्य की चिंता है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की, सबकी चिंता है ना? हमारे मन में कितने विचार हैं? हमारा मन कभी विचारहीन होता ही नहीं. आवर माइंड इज नेवर थॉटलेस, नेवर थॉटलेस. देयर इज ऑलवेज सम और द अदर थॉट इन आवर माइंड. राइट? Am I right? And you know what? There is a science behind each and every thought. What is the science? The science is yatha mati tatha gati. What you think is what happens in your life. आप जैसा सोचते हैं आपके जीवन में वैसा ही घटित होता है. Matter is thought और थॉट इज मैटर. संसार में जो कुछ भी है वो विचार से बना है, या संसार में जो बना है उससे विचार बनता है. कभी आपने सोचा है? हमारे मन में जो विचार है, हमारा जो भाग्य है, हमारा भाग्य यहां नहीं है, हमारे हाथ में. हम कहते हैं हमारा भाग्य, भाग्य की रेखा है ना? भाग्य की रेखा यहां नहीं है. भाग्य की रेखा कहां है? भाग्य की रेखा यहां है, हमारे मन में. हम जैसा सोचते हैं हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में वैसा ही घटित होता है. आज अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पुराने विचार, जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं, जिन्हें हम कर्म कहते हैं, कर्मा कहते हैं, ये सब उसका परिणाम है. आज आपकी आर्थिक स्थिति, योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी शारीरिक स्थिति, योर फिजिकल स्टेटस, आपकी मानसिक स्थिति, योर मेंटल स्टेटस, आपकी सोशल स्थिति, आपका सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति, आपकी स्पिरिचुअल स्टेटस, आपकी आध्यात्मिक स्थिति, सब निर्भर करती है आपके मन में कौन सा विचार है. राइट? ये संसार सिर्फ एक विचारों का मंडल है. देयर आर so many thoughts around you.
आपके मन में 100 हैं, 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 आपके मन में 100 है, आपके मन में 100 है। तो सोचिए 100 विचार अगर हम कलेक्ट करेंगे तो कितने विचार हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों विचार हमारे चारों ओर हैं और हम उन विचारों में, अपने विचारों में डूबे हुए हैं। एम आई राइट? करेक्ट है? राइट। ओके, नाउ आर यू सेटिस्फाइड with your life, what you have right now? How many of you are satisfied? मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आप बहुत खुश हैं? वेरी नाइस। आप बहुत खुश हैं? वेरी नाइस। कोई चिंता है आपके मन में? हाँ ना, चिंता तो होती है, चिंता सबके मन में होती है। कोरोना अभी आया था, सबको चिंता हो गई ना परिवार के विषय में। चिंता सबके मन में होती है, सबके मन में विचार होते हैं। हम क्या अपने विचारों से अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने विचारों से अपने जीवन को बदल सकते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने विचारों से अपने जीवन को बदल सकते हैं? ज्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हम अपने विचारों से अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? जिसे हम कहते हैं सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। एम आई राइट? पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार हम बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में सकारात्मक विचार है? डू वी हैव पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड? डू वी हैव? दैट इज द प्रॉब्लम। हम जानते तो हैं, हम जानते तो हैं कि सकारात्मक विचार से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, पॉजिटिव थॉट से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में वो पॉजिटिव थॉट्स है? क्या हमारे मन में वो सकारात्मक विचार है, या हमारे मन में चिंता है? या तो आप पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, या तो आप चिंतित हो सकते हैं। आप दो में से एक ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक समय पर एक ही विचार आता है, एक समय पर दो विचार नहीं आ सकते। विचारों की गति बहुत तेज होती है। द स्पीड ऑफ थॉट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जानते हैं आप ऋषि विश्वामित्र, उनके मन की गति कितनी थी? परशुराम, भगवान परशुराम मन की गति से चलते थे। वो केवल विचार करते थे, सोचते थे कि मुझे यहां से वहां जाना है और पहुंच जाते थे। सुना है आपने, जब भगवान श्री राम ने धनुष खंडन किया था सीता स्वयंवर में, जब शिव का धनुष भगवान श्री राम के हाथों टूट गया था, उस समय उसकी टूटने की ध्वनि हिमालय तक पहुंची। वहां पर भगवान परशुराम ध्यान में थे और उनका ध्यान भंग हुआ और तत्काल वो हिमालय से उस स्वयंवर में पहुंच गए। कैसे? वो विचार की गति से चलते थे। द स्पीड ऑफ माइंड, द स्पीड ऑफ माइंड इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ माइंड इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ द यूनिवर्स। आपके मन की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन क्या आप अपने मन की स्पीड, मन की गति को सही दिशा में आप ले जा रहे हैं? क्या उसको आप अपने जीवन को बनाने के लिए ले जा रहे हैं? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं, स्पीड ऑफ माइंड कैसे काम करता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने किसी का विचार किया, किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, यू जस्ट थॉट ऑफ अ पर्सन एंड यू गेट अ कॉल। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे और उस व्यक्ति का फोन आ जाता है आपके पास। आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे और बच्चों का फोन आ जाता है आपके पास। क्या कभी ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है। कभी आपने ये सोचा कहीं मेरा मोबाइल गिर न जाए, और जैसे ही आपने सोचा मोबाइल गिर न जाए, आपका मोबाइल पट से गिर गया। कभी ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? आपके साथ हुआ? कभी आपने ये सोचा है, छोटा सा बच्चा बेड के ऊपर, छोटा बच्चा, गोद
गोद में, जो बेबी, लिटिल बेबी, वो बेड के ऊपर है, वो बच्चा बेड से गिर ना जाए, और वो बच्चा एक दिन बेड से गिर जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर माइंड, थॉट। आपने उस विचार को बनाया, आपने ऐसा सोचा, और वो हमारे ब्रह्मांड में घटित हो गया। होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपने सोचा और वो घटित हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रंगा स्वामी सर, आपने मन में विचार किया था कि एक दिन मैं ऐसा प्रोग्राम करूंगा। प्लान्ड, माइंड में विचार, थॉट आया। एक दिन उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं एक दिन आप सब लोगों के साथ एक ऐसा प्रोग्राम करूंगा, और आज देखिए वो घटित हो गया। राइट? जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटित होता है। वट एवर यू थिंक, दैट हैपन्स इन योर लाइफ। एम आई राइट? आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी सोच सकते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था और मेरे जीवन में ऐसा हुआ। इसमें सबसे तेज गति किसकी होती है? सबसे तेज गति होती है चिंता। हम किसी चीज की चिंता करते हैं, वो जीवन में घटित हो जाता है। दूसरी सबसे तेज गति होती है क्रोध की। जब आप गुस्से में होते हैं, आपका ऊर्जा बहुत तेज होता है। तब आप जब बात करते हैं किसी से गुस्से में, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो उस समय आपकी ऊर्जा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। और उस ऊर्जा शक्ति से जब आप कुछ अपनी वाणी से बोलते हैं, मन वचन कर्म, जब आप अपनी वाणी से कुछ बोलते हैं, मन में सोचते हैं, उसकी शक्ति इतनी अधिक होती है, उस समय आप जो बोलते हैं वो घटित हो जाता है। इसलिए क्रोध के समय कभी भी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले का अहित हो सकता है। The bad can happen to that person. So never curse. कभी किसी को बुरी बात मत बोलिए, उसके जीवन में आपकी वजह से अनिष्ट हो सकता है। सही है? करेक्ट है? इसलिए कभी किसी को गलत बात मत बोलिए, क्योंकि उसके जीवन में आपके शब्दों से वो घटना घटित हो सकती है। यदि किसी को बोलना है तो उसको प्रेम की भाषा बोलिए, उसको अच्छे शब्द बोलिए, आशीर्वाद दीजिए, उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। देखिए वह व्यक्ति कितना सफल हो जाता है। एक बार कहीं पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने 2 पौधे लगाए, बहुत सुंदर सुंदर 2 पौधे लगाए, और उस पौधे में एक पौधे को उन्होंने रोज एक मैसेज दिया, तुम बहुत बेकार हो, यू आर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग, यू आर टोटल वेस्ट। सब सारे नेगेटिव थॉट्स उस पौधे को उन्होंने रोज दिए, और दूसरे पौधे को उन्होंने एक सकारात्मक विचार दिया। रोज उस पौधे को बोलते थे, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, यू आर ब्यूटिफुल, यू कैन बिकम अ बिग ट्री, यू आर वेरी यूजफुल, आई लव यू। उसको सारे सकारात्मक विचार दिए। कुछ ही दिनों में जो पहला पौधा था वो सूख के, मुरझा के नष्ट हो गया, और जो दूसरा पौधा था वो और बड़ा हो गया, उसमें फूल आ गए, उसमें पत्तियां आ गईं, और वो जीवन की तरफ आगे बढ़ गया। दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स। सोचिए, जब हम किसी दूसरे को ऐसे विचार देते हैं, उसके जीवन में ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो जो हम स्वयं सोच रहे हैं, बिकॉज थॉट्स कहां है? आपके माइंड में इस वक्त जो थॉट है इस समय, क्या वो किसी दूसरे के माइंड में है? वेयर इज अ थॉट? वो विचार कहां है? वेयर इज अ थॉट? आपके माइंड में है? आपके माइंड से बाहर है? या किसी और के माइंड में है? कहां है? वेयर इज इट? इन योर माइंड? आपके माइंड में है? ओनली इन योर माइंड। That thought is only in your mind, not in my mind, right? So who is going to get affected? उस विचार से किसको लाभ होगा, या उस विचार से किसको हानि होगी, किसको नुकसान होगा? मुझे।
या जो सोच रहा है उसे, जो सोच रहा है उसे। बहुत सिंपल साइंस है। योर थॉट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ, माई थॉट इज गोइंग टू मेक माई लाइफ। योर थॉट इज गोइंग टू मेक योर हेल्थ, माई थॉट इज गोइंग टू मेक माई हेल्थ। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं है, वेयर इज द नेगेटिव थॉट? इन माई माइंड और इन योर माइंड? योर माइंड। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत अच्छी है, जो आपके बाजू में बैठा है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ऐसा पॉजिटिव थॉट अगर आपके मन में आता है, तो हु इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, यू और मी? You, because our body is made up of our mind, thoughts, each and every cell. There are 33 trillion cells in our body and each and every cell has got a mind. क्या आप जानते हैं 33 trillion cells have got their own mind. उनका अपना एक मस्तिष्क है, उसको उनका अपना एक विचार मंडल है जिसको हम साइंस से नाप नहीं सकते। There are 33 trillion cells. There are 33 trillion thoughts in your body. अच्छे भी बुरे भी। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके जीवन में घटित होता है, वैसा आपके जीवन में, आपके भविष्य में होता है, आपके शरीर में होता है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिसमें कोई व्यक्ति बीमार था। एक व्यक्ति बीमार था, उसने अपने माइंड को ट्रेन किया और उसने क्या किया? उसने बोला नहीं, आई एम हेल्दी। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग मेडिसिन हियर? आप में से कितने लोग दवाएं लेते हैं? काफी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको लगता है आप बीमार हैं। इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू थिंक यू आर नॉट वेल, राइट? इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू थिंक यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट हेल्दी। और उससे बचने के लिए आप रोज मेडिसिन लेते हैं। कितने लोगों को बीपी है? बीपी है, दवाएं लेते हैं। यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग योर माइंड टू फील दैट यू हैव ब्लड प्रेशर। अब अगर आप अपने ही शरीर को, अपने ही मन को यह विचार दे, नहीं आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, माई बॉडी इज फिट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम स्ट्रांग। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर आपके मन की बात सुनेगा और आपकी शरीर की पीड़ाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। ऐसा ही कुछ हमारे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि अपने आप को ट्रीट करने के लिए, हील करने के लिए किया करते थे। एक दूसरे को थॉट्स दिया करते थे, खुद सोचते थे। वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं बीमार हूं, वो कभी नहीं सोचते थे मैं बूढ़ा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओल्ड? हाउ मेनी ऑफ यू आर ओल्ड? कितने लोग बूढ़े हैं यहां पे? आपको लगता है सर? और एज इज जस्ट अ नंबर। क्या बोलते हैं आप? एज सिर्फ एक नंबर है या आप वाकई बूढ़े हैं? इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप चाहें तो आज भी आपके शरीर में उतनी ऊर्जा है जितनी ऊर्जा आपके शरीर में 20 वर्ष की उम्र में थी। एट द एज ऑफ 20 जितनी एनर्जी आपके बॉडी में थी, आज भी उतनी एनर्जी आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव एक्सेप्टेड दिस थॉट। क्या एक्सेप्ट कर लिया है हमने? हम बड़े हो गए हैं, हाँ? हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हो गए हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, हम दादा दादी नाना नानी हो गए हैं, है ना? आपको पता है संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? रोग, संसार का सबसे बड़ा रोग, द बिगेस्ट डिजीज इन दिस वर्ल्ड, मालूम है आपको? द बिगेस्ट डिसीज इज लोग। रोग, लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सही है? अगर इस उम्र में अगर मैं निक्कर पहन के जाऊंगा बाहर, मेरा मन है कि मैं बच्चों की तरह निक्कर पहन के बाहर जाऊं और बारिश में भीगूं,
मैं चाहता हूं मैं बारिश में जाके भीगूं, लेकिन अगर मैं बारिश में जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग? सत्य है। घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले कहेंगे क्या हो गया है? What has happened to you? Have you gone crazy? सठिया गए हो क्या? इस बुढ़ापे में बारिश में घूमते हो? इस उम्र में अगर हमारा मन करता है कि हम गिल्ली डंडा खेलें, हम नहीं खेल सकते। क्यों? क्या कहेंगे लोग? आप में से कितने लोगों ने मार्बल्स खेले हैं? कंचे, वो गोलियां खेला है? अभी खेलेंगे? रेडी? लेकिन क्या खेल सकते हैं? क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? आप दोनों कपल हैं, आपके पास बाइक है, बाइक में आए हैं, बाहर जाते हैं, ओके। जैसे शादी के पहले जाते थे वैसे जाते हैं? सेम? पक्का? मन करे तो भी जा नहीं सकते। क्या कहेंगे लोग? इतनी उम्र हो गई है तब भी देखो कैसे 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 कर रहे हैं, है ना? कितना हम मन मारते हैं, अपने विचारों को मारते हैं और अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। मन करता है हमारा रसगुल्ला खाने का, एक मिलता है खाने के लिए, हमें 2 खाना है, नहीं खा सकते। 2 मांगेंगे तो सोचेंगे कैसा बेशरम आदमी है, देखो, हाँ अभी तो 1 खाया, अभी एक और खा, कितना खा रहा है ना? आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन नहीं खा सकते। क्यों? हमें कोई आइसक्रीम खाते देखेगा तो लोग बोलेंगे देखो आइसक्रीम खा रहा है, हाँ? क्या कहेंगे लोग? ये विचार हम अपने आप को देते हैं और इस विचार से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। एंड वी बिकम ओल्ड, वी बिकम एज्ड, वी बिकम पुअर, वी बिकम अनहेल्दी एंड वी बिकम मिजरेबल वन डे। एक दिन हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू वन एक्सरसाइज, ठीक है? आपके राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, आपको उन्हें बोलना है आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी काइंड एंड वी लव यू ऑल, वी ऑल लव यू। गिव थॉट टू योर माइंड एंड गिव दिस थॉट टू ऑल द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने आसपास वाले लोगों को। और वो सब इतना पीछे क्यों बैठे हैं? आइए ना, आगे आइए, आपके लिए ही तो है। पीछे वाले सारे आगे आ जाइए। जितने लोग पीछे, इतना दूर क्यों हैं? आइए आइए, आगे आइए। और सब लोग एक दूसरे को आगे पीछे बोलिए आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं एंड वी ऑल लव यू। आप सबको बोलना है और ये मत सोचिए क्या कहेंगे लोग, कोई कुछ नहीं कहेगा। राइट? लव यू बोल दिया। रंगा स्वामी सर, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, वी ऑल लव यू। राइट? We too love you. Now I want all of you to observe. आपने अभी जो भी किया, सबने किया? कितने लोगों ने किया? ये अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, हाथ नीचे करिए। कितने लोगों ने नहीं किया? सबने किया। अच्छा, उन्होंने नहीं किया। आई लव यू। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ऐसा करने के बाद आपके मन में कैसा विचार है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा फील हो रहा है? फीलिंग लाइट? फीलिंग हैप्पी?
फीलिंग जॉयफुल, अच्छा लग रहा है. दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड. पोएम, POEM, the power of your energy mind, the power of positive mind, power of your thought. You feel good. When you feel good, trust me, all the good things are going to happen in your life. And when you are sad, upset, angry, frustrated, all the bad things are going to happen in your life. So which is better? To be happy or to be unhappy? Happy? Right. So promise me, I want promise from all of you that from today onwards, you will always think positive and you will always give positive thoughts to yourself. अपने आप को देना है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम यंग, मेरे बाल काले हो रहे हैं. अच्छा, काले हो रहे हैं क्या? इनफैक्ट अगर कोई सफेद बाल भी दिखता है ना, उसको देख के भी आप बोलो, ये थोड़ा थोड़ा काला हो रहा है क्या, थोड़ा ब्लैक हो रहा है क्या, थोड़ा नया बाल छोटा सा नया आ रहा है लगता है. एंड यू विल सी, you will start getting new hair on your head. Your all old white hairs will start turning black. Trust me, your body is listening. Your body is listening to your mind. Entire body, each and every cell is listening to your mind. Understood? Give good thoughts to your mind. And never think of anything negative, bad. Okay? So I want promise from all of you from today onwards, you will think good. You will always say good things to your family members, to your children. If you tell your child that you are brave, he will become brave. If you tell him you will become wise, he will become wise. इसलिए हमारे पुराने में आशीर्वाद भी ऐसी होता था, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव. हाँ, ऐसे आशीर्वाद. So give the blessings to your children कि you will become number one, you will become wise, you will become intelligent, and you are, and you will see your children will become like that because you are incepting these positive thoughts in their mind. आप उनके मन में ये विचार डाल रहे हो. So you also can manifest the thoughts in your mind. आप अपने मन में उन विचारों को बना सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, मन को स्वस्थ बना सकते हैं, आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं. आपके अंदर उतनी क्षमता है, आप पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं. अभी स्वामी जी ने बताया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि. मैं चाहूं तो मैं पूरी सृष्टि बदल सकता हूं. इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है मेरे अंदर. लेकिन मैंने उस शक्ति को केवल चिंताओं और नकारात्मक विचारों में ही खर्च कर दिया. आज से आप सब अपनी ऊर्जा को सिर्फ सकारात्मक विचारों में खर्च करेंगे. प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? थैंक यू सो मच. ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी माइंड. यू यूज इट. और अगर आपको कोई भी रेस्पॉन्स मिलता है, आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, आप उस बदलाव को जरूर हमारे साथ शेयर करें. आई सहयोग एनजीओ, या तो फिर आप रंगासम स्वामी सर से नंबर भी ले सकते हैं और नंबर लेकर आप बताएं कि आपके जीवन में उससे क्या बदलाव आया. और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और सकारात्मक लोगों की संख्या और बढ़ाइए. हमारे संसार में आज सकारात्मक लोगों की जरूरत है. हर तरफ केवल नकारात्मकता है, हर तरफ नेगेटिव लोग हैं. कांग्रेस आ गई, बीजेपी चली गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस चली गई, अब क्या होगा? चारों तरफ नकारात्मकता है. आज हमारे संसार में सकारात्मक लोगों की जरूरत है. और आज से मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आज आप सब संसार में जाकर सकारात्मक की खुशबू को पूरे संसार में फैलाएंगे. आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, राइट? और हम इस संसार को, अपने चारों तरफ वातावरण को और अपने पूरे विश्व को सकारात्मक विश्व बनाएंगे. इस विचार के साथ
मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और उससे पहले एक छोटा सा ध्यान सेशन हम करेंगे और उस ध्यान में आप सिर्फ सकारात्मकता सोचेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ध्यान सेशन। बैठिए, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स। ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. Sound. Well, the audio is being played. I'd just like to sincerely thank Sadhguru Sadhu Shri Guruji for his kind words. I think he has reignited the children in us, is it not? How many of you want to go back and play marbles, cycle? At least I want to go back and play some marbles, ride cycle, yeah? Yeah, kite also, why not? Yeah. Yeah. Guruji is going to guide us now through the audio. लंबी गहरी सांस लो और पूरी सांस बाहर छोड़ो। शरीर के भीतर जितनी भी हवा है सब बाहर छोड़ो। अब एक नई श्वास भीतर लो। एक बार फिर शरीर के भीतर की सारी हवा बाहर छोड़ दो। ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕಿದವರು ಚಸ್ಮಾ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಚಸ್ಮಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಯಾರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಈಗ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ. अपनी नाभि से सांस लो। और सांस छोड़ते वक्त कैसे भीतर जा रही है। शरीर को ढीला छोड़ दो।
सारा ध्यान अपने पेट पर ले जाकर रख दो। अब धीरे धीरे ध्यान अपने सर के ऊपरी हिस्से की तरफ लेकर आओ। Focus on the top of your head. Sahasrar Chakra. अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करो। ये तो केवल शरीर है जो यहाँ बैठा है, सांस ले रहा है। मैं और ये शरीर। You are not only this body. You are much beyond this body. सोचो, क्या मैं केवल ये शरीर मात्र हूं? Think, am I only this body or much more than this body? ये शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं केवल ये शरीर मात्र नहीं हूं। मैं इससे भी कहीं और, कुछ और, इससे बहुत कुछ और हूं। This body is mine, but I am not only this body. I am much beyond, bigger, larger than this physical body. मेरा शरीर तो एक माध्यम है मुझे उस परमेश्वर तक पहुंचाने का, उसके साथ जोड़ने का।
my body उस परम शांति, उस परम आनंद को अनुभव करने का is the medium to connect me to the divine, to the universe, to the God. अपने चारों तरफ फैली इस शांति का अनुभव करो। Observe the silence and the peace all around you. Relax your mind. Feel the peace around you. अपने दोनों हाथों को जोड़ लो। Raise both the hands up in the air. दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने चेहरे पर रखकर आशीष देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। With all the gratitude, thank God and bless your face, your head. अपने सर पे अपने हाथ रख के स्वयं को आशीष दीजिए। Bless your body parts if you have any problem in your body. शरीर में कहीं कष्ट है तो अपने हाथ वहां रखकर अपने शरीर को आशीर्वाद दीजिए। And slowly open your eyes.